लगता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे कि पहले भी जब समाज के गरीब वर्गों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, तब भी समाज के किसी घटक में तनाव उत्पन्न नहीं हुआ था। Friends, I will read this statement in English. Congress governments have always opposed caste census. Caste was not included in all the census operations conducted since independence. In 2010, then Prime Minister late Dr. Manmohan Singh ji had assured the Lok Sabha that the matter of caste census should be considered in the cabinet. A group of ministers was formed to consider this subject. Most of the political parties had recommended caste census. Despite this, Congress government decided to conduct only a survey of caste instead of a caste census. That survey is known as SECC. It is well understood that Congress and its India alliance partners have used caste census only as a political tool. As per Article 246 of the Constitution of India, the subject census is listed at 69 in the Union list in 7th schedule. According to Constitution of India, census is a union subject. Some states have conducted surveys, I am repeating the word, surveys to enumerate castes. Some states have done this well, while some others have conducted such surveys purely from a political angle in a non-transparent way. Such surveys have created doubts in the society. Considering all these facts and to ensure that a social fabric is not disturbed by politics, caste enumeration should be transparently included. I am emphasizing the word transparently included in the census instead of surveys. This will strengthen the social and economic structure of our society while the nation continues to progress. Under the leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the Cabinet Committee of Political Affairs has decided today, that is 30th April 2025, that caste enumeration should be included in the forthcoming census. This demonstrates that a government is committed to the values and interests of a society and country. Like in the past, when a government had introduced 10% reservation for the economically weaker sections of the society without causing any stress in any section of the society. Thank you. So can we take questions on this, sir? One second, Stu. अश्वनी वैष्णव को आप सुन रहे थे, प्रेस वार्ता कर रहे थे, जाति जनगणना जिसको लेकर पूरे देश में बहस बहुत तेज है, उस पर आप सुन रहे थे अश्वनी वैष्णव को, और वो कह रहे थे कि जाति जनगणना पर मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। जाति जनगणना कराएगी मोदी सरकार। एक तरह से विपक्ष लगातार इसको लेकर कई बातें कह चुका है कि आखिरकार सरकार क्यों नहीं करा रही जाति जनगणना। एक तरह से बहुत बड़ा फैसला है ये मोदी सरकार का, जाति जनगणना करवाएगी मोदी सरकार। अश्वनी वैष्णव को अभी आप सुन रहे थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जहां उन्होंने एग्रीकल्चर को लेकर बहुत सारी बातें कही, और ये बड़ा फैसला आया है जाति जनगणना को लेकर मोदी सरकार का कि जाति जनगणना करवाने जा रही है मोदी सरकार। स्वाति पाठक हमारे साथ मौजूद है। स्वाति, ये बहुत बड़ा फैसला है जाति जनगणना को लेकर, पूरी अपडेट क्या है? अश्वनी वैष्णव को भी अभी लोगों ने सुना, क्या बताया जा रहा है इसमें? देखिए, कैबिनेट की बैठक आज हुई है और उसके बाद ब्रीफिंग केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव कर रहे थे, और उन्होंने ब्रीफिंग के दौरान कहा है, और ये बड़ी खबर है इस वक्त की, जातीय जनगणना मोदी सरकार कराएगी, और जब आगामी जनगणना होगी उसी में जातीय जनगणना भी कराई जाएगी, ये अश्वनी वैष्णव की ओर से कही गई है। और जिस तरह से पिछले दिनों को देखिए तो लगातार जातीय जनगणना के मुद्दों को विपक्षी पार्टियों ने उठाया है, और अब
जब ब्रीफिंग की गई है तो उसमें कहा गया है जो जब आगामी जनगणना कराया जाएगा उसी दौरान जातीय जनगणना भी कराई जाएगी, अश्विनी वैष्णव की ओर से कही गई है। और ये बड़ी खबर है इस वक्त कि बिल्कुल, मोदी ये सरकार बहुत बड़ी जातीय अनाउंसमेंट है जनगणना स्वाति। कराएगी। विपक्ष इस मुद्दे पर हमेशा खेलता था और विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल भी उठा लेता था, आवाज उठाता था कि आखिरकार सरकार पीछे क्यों हट रही है, और ऐसे में क्या ये विपक्ष से मुद्दा हथिया चुकी है, ये भी बड़ा सवाल है। फिलहाल ये बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ी जानकारी है जी। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी की वो बात हो, समाजवादी पार्टी की बात हो, लगातार जातीय जनगणना के मुद्दे को उठाया गया है और भारतीय जनता पार्टी सरकार को विपक्षी पार्टियों ने घेरा है कि सरकार आखिरकार जनगणना क्यों नहीं करा रही है। जातीय जनगणना को लेकर सवाल पूछा गया है। अब जब कैबिनेट ब्रीफिंग चल रही थी उसी दौरान अश्विनी वैष्णव की ओर से कहा गया है कि मोदी सरकार जब आगामी जनगणना कराएगी तो उसी दौरान जातीय जनगणना भी कराई जाएगी। ये जो है बड़ा फैसला अगर हम कहें तो की गई है और बड़ी घोषणा है ये, क्योंकि विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर लगातार सरकार को घेरती रही है, चाहे अखिलेश यादव हो या कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की बात करें। क्योंकि आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव हैं, बिहार में चुनाव है और भी कुछ राज्यों में चुनाव हैं, तो एक तरह से बहुत बड़ा फैसला है। सुनील साजन हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त समाजवादी पार्टी से। सुनील साजन जी, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जाति जनगणना को लेकर, जिसको लेकर आप लोगों ने हमेशा सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि सरकार जाति जनगणना नहीं करवाना चाहती, लेकिन अब देखिए फैसला ले लिया सरकार ने, जनगणना करवाने जा रही है मोदी सरकार जातियों से जुड़ी हुई। क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, हम सरकार को बधाई देंगे कि अंततः पीडीए